एम फाउंडेशन ट्रस्ट की पुकार पर बैकडोर से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए बिल के खिलाफ प्रेस क्लब में 7 तंजीमों के साथ कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा। पीपल्स फोरम अगेंस्ट पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, प्रांतुकजोन ज्वाइंट फोरम अगेंस्ट एनआरसी, नो एनआरसी सीए मूवमेंट, उत्साही आवाज़, एम फाउंडेशन ट्रस्ट के लीडरान ने ममता बनर्जी के दोहरी पॉलिसी पर गम व गुस्से का इजहार किया। कहा, एक तरफ ममता बनर्जी चुनावी प्रचार में मुसलमानों से कह रही है कि जब तक ममता मैं जिंदा हूं बंगाल में सीए एनआरसी लागू करने नहीं दूंगी, जबकि दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान तृणमूल के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की सीए की हिमायत पर अक़लियतों के साथ खुला धोखा है। उन्होंने कहा, अभिषेक बनर्जी सीए की हिमायत करके तृणमूल कांग्रेस की घर वापसी करवाई है। अभिषेक का सीए वाला बयान न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि बीजेपी, आरएसएस और मोदी के नफरत को बढ़ावा देना, समाज को बांटो और वोटों की लूटने वाला पॉलिसी है। तृणमूल कांग्रेस इक़्तिदार और वोट के लिए आयन के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने हम लोगों के दिल की बात जो है बहुत ही तफसील से और बहुत ही टू द पॉइंट आपने रखा, हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे जनाब इरशाद गौहर साहब से, जो एजुकेशनिस्ट भी हैं और एक बड़ी नज़र रखते हैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर में, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोदी বলছেন আমি হিন্দু মুসলিম করতে চাইছি না, কিন্তু ক্রমাগত প্রতিদিন হিন্দু মুসলিম পড়ে যাচ্ছে। এবং সবথেকে বড় কথা যে ওইখানকার যে সরকার, যে আমাদের যে সঞ্চালক তিনি বললেন রাজা আর রাজু, আমরা যেন দুটোকে ভালো করে চিনতে পারি, বলুন গুড়িয়ে না করি। এই সরকার তার মুখ্যমন্ত্রী একেবারে তো পাকসার কাছে একদম প্রথম দিন থেকে আমি বিষয়টা অবজার্ভ করেছি যে একদিকে চিফ মিনিস্টার রাস্তায় নেমে ক্যাচিসি করছেন, অন্যদিকে ওখানে বিশাল পুলিশ মোতায়েন করে অল্প কয়েকজন 50-60 জন মহিলা বসে আছেন, তাদেরকে কিন্তু ওখানে 5 গাড়ি পুলিশ মোতায়েন করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তো এটা কলকাতার শহর বলে পারা যায়নি, কারণ মানুষ এত বেশি রেসপন্স করেছিল, এত মানুষের ঢল নেমেছিল যে পুলিশের প্ল্যানটা ভেসে যায়। কিন্তু এটা আমরা অনেকেই জানি না, শহরের বাইরে যেখানে মিডিয়ার অত ফোকাস নেই, সেখানে যারা শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা এই ডিসক্রিমিনেটরি যে অ্যাক্ট তার বিরুদ্ধে যারা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিল, উনি পুলিশ মন্ত্রী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে কড়া কড়া ধারায় মামলা দিয়ে তাদেরকে কিন্তু থানা কোর্টে হাঁটা করিয়েছেন দীর্ঘদিন, এখন অনেকে হাঁটছে। এটা কিন্তু কলকাতার যে মিডিয়া সেটা বিশেষ কভারেজ দেয়নি। আমি গ্রাম বাংলা থেকে বলে আমি उसमें 2 चीजें हैं, एक एनआरसी और एक सीए। शुरू से पहले 19 में जब आंदोलन हुआ था तो हम लोगों ने नारा लगाया था कि नो सीए नो एनआरसी, कागज नहीं दिखाएंगे, ये था हमारा नारा। उसी के सिलसिले में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं इस वजह से कि हमारी मगरबी बंगाल की जो हुकूमत है और इसकी जो सुप्रीमो है और जो सेकेंड कमांड है, उन लोगों के कुछ ऐसे बयान आ गए हैं जिससे हमारी उलझन भी बढ़ गई है। शुरू में तो ये लोग भी कह रहे थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, एनआरसी और सीए नहीं मानेंगे, लेकिन गुज़श्ता दिनों में 3-4 दिनों में हम लोगों ने देखा है कि इन लोगों के बयान कुछ पलट रहे हैं। तो आइए हम थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। थोड़ी सा बैकग्राउंड में পীড়িত হয়ে এসছে আর কেউ পীড়িত হয়ে আসেনি। রোহিঙ্গাদের কথা উঠছে, অমিত শাহ লাস্ট বলে যাচ্ছে কলকাতায় যে এরা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার পক্ষে, সেই জন্য এরা এই বাধা দিচ্ছে। কিন্তু রোহিঙ্গাদের আমরা তো সবাই জানি, অমিত শাহ জানে, কিন্তু যেও মিথ্যে কথা বলছে, যে রোহিঙ্গারা তো ওখান থেকে বিতাড়িত হয়ে এসছে, অত্যাচারিত হয়ে এসছে মায়ানমার থেকে।
তাদের যেখানটা বসবাস করতো সমস্তটা থেকে আবির্ভাব যখন হলো এবং ছড়িয়ে পড়লো তখন এটাকে বাধ্য হয়ে আমাদের এই ধর্মগুলো বন্ধ করতে হবে, তুলে দিতে হবে। এবার আমার প্রথম কথাটা হচ্ছে যে এই সিএ একটা দরকার কেন, আমি এটা কি সিএ কি করবে না করবে এই বলতে যাচ্ছি না, সিএ দরকার হলো কেন। আমাদের দেশে কি নাগরিকত্বের, আমাদের সংবিধানে নাগরিকত্বের কোনো প্রভিশন, কিছু শর্ত বা ব্যবস্থা ছিল না, যার জন্য তখন এই নিয়ে আমরা অনেক তর্ক করব। পশ্চিমবাংলায় সিএ বিরোধী আন্দোলন খুব ব্যাপকতা লাভ করেছিল, এটা আপনারা জানেন। সেই রাজাবাজারে কর্পোরেশনের সামনে, কলকাতা কর্পোরেশনের পাশে সংবিধানে পরিষ্কার করে কিন্তু বলে দেওয়া আছে যে একেবারে আর্টিকেল প্রথম দিকে আর্টিকেল 3-তে যে কারা কারা ভারতবর্ষের নাগরিক হবে এবং বাইরে থেকে এলেও কারা কারা নাগরিকত্ব পাবে। সেখানে কোনো মেনশন করা নেই যে এই ধর্ম থেকে এলে পাবে না আর এই ধর্ম থেকে এলে পাবে। অর্থাৎ নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ধর্মটা কোনো বিচারের মাপকাঠি হতে পারে, এটা সংবিধানের সেই জন্য তাই সংবিধানের নির্দেশ হচ্ছে তাই। এরা অ্যামেন্ডমেন্ট একটা করলো 2013-তে এসে, তাতে এরা বলল যে একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী যারা মানে মুসলমান জনসাধারণ তারা ছাড়া বাকি সবাই সে আপনি হিন্দু খ্রিস্টান জৈন বুদ্ধিস্ট ইত্যাদি সবাই মিলে তারা এখানে যদি ওখানে পীড়িত বা অত্যাচারিত হয়ে আসে তাহলে পরে তাদের ভারত সরকার নাগরিকত্ব দেবে। ये नहीं है, लाख मुसलमान लोग नहीं हमारी ये जिम्मेदारी, हम लोग ये महसूस करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है आवाज उठाना, बोलना, लोगों तक के शऊर पैदा करना। अब बाकी वो उसके ऊपर में उसको मानते हैं या नहीं, ये लोगों का अपना फैसला है। हम कोई जबरी कानून के तहत हम नहीं ये कर सकते, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से कानून नहीं रखते। यही चीज ये बताने के लिए बहुत सारे पंफलेट हम लोगों ने छोड़ा है, लोगों को तकरीर अलग अलग जगह जा करके तकरीर कर रहे हैं कि ये एनआरसी ये सीए ये हम लोगों के लिए। हम लोग क्या बोलेंगे, जो बड़े बड़े वुकला हैं, जो बाकी जो दानिशवरान हैं, उन लोगों ने कहा है कि ये बहुत ही खतरनाक है। आप अमेरिका में देखिएगा, अगर अमेरिका में ग्रीन कार्ड देने के लिए कोई मुसलमान, कोई जीव, कोई क्रिश्चियन या कोई किसी सरदार को नहीं देखा जाता है, सबों को ग्रीन कार्ड मिलता है। ये आखिर ये तनाज़ा या ये तफरीक यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों है? हमको जब शहरियत देने की बात आती है तो कहते हैं मुसलमान पीछे जाओ। What do you mean by that? What do you mean by that? अगर लोकसभा में जब बिल पास होता है और स्टेट में लागू करने के लिए चीफ मिनिस्टर का अनुमति रहता है, या बिना चीफ मिनिस्टर के भी आप स्टेट में किसी भी लोकसभा बिल को लागू कर सकते हैं? हम बताएं लोकसभा में जी 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 सर, लोकसभा में जो आइन पास हो गया और प्रेसिडेंट ने कंसेंट दे दिया, वो तो आइन बन गया। उसको हम उसी वक्त बातिल कर सकते हैं जब फिर से लोकसभा में उसके खिलाफ कोई बिल ला करके उसको कैंसिल करें। दूसरी बात जो आपने कही उसको लागू करने का, तो यहाँ पर बात है कि आप आइन तो लोकसभा में बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन उसको लागू करने के लिए जो मशीनरी है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। इसी वजह से जैसे केरला गवर्नमेंट ने ऑलरेडी असेंबली में रेजोल्यूशन दे दिया है कि हम सीए को लागू नहीं करेंगे, हम एनआरसी पर काम नहीं करेंगे। इसी तरह से ममता बनर्जी अगर चाहें
तो यहाँ काम नहीं करने देंगे। लेकिन हम लोगों ने तो कुछ उल्टा देखा है कि सॉल्ट लेक में और बनगांव में डिटेंशन कैंप बना रही थी, और हाँ सॉल्ट लेक या राजारहाट वहाँ पर डिटेंशन कैंप बना रही थी, मुंह से कह रही है कि लागू नहीं करने देंगे। और वो बताया जाता है कि वो राजारहाट और बनगांव में जो जमीन अलॉटमेंट की गई वो फॉरेनर्स के लिए, वहाँ पर उसने ये मेंशन किया वो एनपीआर से कोई रिलेटेड नहीं है। वो मुंह से क्या बोलती है, वही तो हो जाएगा।